مسلمان ہوں، کیا میں اللہ کو ٹائم دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا؟ 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے، ان میں سے اللہ تعالیٰ 1 گھنٹہ مانگتے ہیں، تو کیا میں اللہ کو گھنٹہ دیتا ہوں کہ نہیں دیتا؟ ہم دنیا کے ہر معاملے کے لیے وقت نکال رہے ہیں، فیملی کے لیے ٹائم نہیں نکال رہے، والدین کے لیے، وہ والدین جو انسان کو ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں، پھر وہ جو بولنا سکھا رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ وقت اسپینڈ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر کو ایڈ کرنا چاہیے، قرآن کریم کے ترجمے کو ایڈ کرنا، اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ اس کو پڑھیں، بہترین طریقہ ہے۔ اور یہ ہماری فیوچر پلان، ایک تو اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ، رشتہ اچھا ہو جائے گا۔ اینڈ گر گئی دیواریں یاد سے، نادان ہیپی نیو ایئر کہہ رہے ہیں، چونکہ آج 1 جنوری اور بہت اچھے طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ہیپی نیو ایئر کے نام سے SMS کیے جاتے ہیں لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے، لوگ ہماری نوجوان نسل اور ہمارے تمام کے تمام لوگ اس کو اچھے طریقے سے منا رہے ہوتے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، خوشیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، چونکہ ہمارا 1 سال اور بیت چکا ہے اور 2022 جو تھا ہم اس کو الوداع کر چکے ہیں، اور اب 2023 شروع ہو چکا ہے۔ جیسا بھی ہم نے کیا، جیسے بھی اعمال کیے، جیسے بھی کام کیے، وہ ہماری پلاننگ کمپلیٹ ہوئی نہ ہوئی، ہم نے کام وہ کمپلیٹ کیے یا نہ کیے، اب جو ہے 2023 شروع ہو چکا ہے، تو ہم اس کے لیے کیا پلاننگ کی ہے، ہم نے کیا سوچا ہے، کیا کیا ہے ہم نے۔ تو میں اس کے لیے آپ کے سامنے 5 چیزیں، 5 ریزولوشن لے کر آیا ہوں، ایسے جن کو ہم اپنائیں تو زندگی کے اندر ہم بہت زیادہ چینج کر سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ یاد رکھیے گا، جتنے بھی لوگ، میری مائی بہنیں، بھائی، اسٹوڈنٹس، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، ہر ایک کی زندگی کے اندر ظاہری بات ہے برتھ ڈے تو آتی ہے، مناتے بھی ہوں گے آپ، ظاہری بات ہے۔ تو برتھ ڈے جو آتی ہے، میری زندگی کے اندر جو برتھ ڈے آتی ہے، میں اس کے اوپر ضرور فیوچر پلاننگ کرتا ہوں۔ آج نیو ایئر ہے، جس نے برتھ ڈے کے اوپر کوئی پلاننگ نہیں کی تو وہ نیو ایئر کے اوپر ضرور پلاننگ کیا کرے کہ ہم نے، ویسے تو انسان کو روزانہ سوتے وقت اس کی پلاننگ ضرور کرنی چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے، صبح کیا ہونا ہے، کیسا کرنا ہے۔ وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نہیں تکمیل ہوتی، نہیں مکمل ہوتے، وہ الگ چیز ہے، لیکن پلاننگ ضرور ہونی چاہیے، سوچنا ضرور چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیا کرنے جا رہا ہوں، میں کیا، کیسا، ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اب نیو ایئر جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، آج 1 جنوری ہے، تو ہمیں ضرور اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، جن کے اندر میں سب سے زیادہ بہت ساری چیزوں کو جمع کرنے کے بعد 5 چیزیں ایسی لے کر آیا ہوں جو ہمارے لیے بہت زیادہ کمفرٹیبل رہنے والی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے، بی لیس اسٹریسڈ آؤٹ ان دس ایئر، کہ یہ سال ہمارا ٹینشن کا سال نہیں ہے، اس کے اندر بالکل بھی کسی قسم کی ہم نے ٹینشن نہیں لینی، کسی قسم کی بھی، اور بالکل بھی ہم ٹینشن نہیں لیں گے جیسا بھی ہے۔ اس کے اندر سب سے مین چیز یہ ہے کہ ہم جتنے بھی معاملات ہیں وہ اپنے اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، ٹینشن نہیں لیں، اپنے جو ہے توکل کے اوپر جو ہے رکھیں، توکل کریں اللہ تعالیٰ کے اوپر، ہمارا یقین اللہ کے اوپر ہونا چاہیے، بلیو اللہ کے اوپر ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں گے انشاءاللہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمیں سرخرو ضرور فرمائیں گے۔ اس کے بعد سب سے مین چیز وہ یہ ہے، اسپریس اونلی پازیٹیوٹی، یعنی ہم مثبت سوچیں، جب بھی سوچیں تو مثبت سوچیں، اچھا سوچیں، جو بھی سوچیں اچھا سوچیں، دوسروں کے بارے میں اچھی رائے رکھیں، اچھا گمان ہونا چاہیے اور اچھا ہی سوچنا چاہیے۔ اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں غلط سوچتے رہتے ہیں، غلط سمجھتے رہتے ہیں، اور یعنی ہم اپنے اندر ہی اندر میں ججمنٹل ہوتے رہتے ہیں، دوسروں کے بارے میں بری سوچ رکھتے ہیں۔ یعنی ہمیں بالکل مثبت سوچنا چاہیے، اچھا سوچنا چاہیے، نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے ہماری کمپنی اچھی ہونی چاہیے۔ یہ فیوچر پلاننگ کے اندر پورے سال کے اندر یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہماری کمپنی اچھی، دوست اچھے ہونے چاہیے، فرینڈز اچھے ہونے چاہیے، جن کے ساتھ ہمارا تعلق واسطہ ہو وہ کیا ہونے چاہیے، اچھے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ہے بک یو ریڈ ڈیورنگ دس ہول ایئر، ہم اس سال کے اندر کون کون سی بک پڑھیں، کس طرح، کون سی بک ہونی چاہیے۔ سب سے مین چیز میں جو اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، ہمیں قرآن کریم کی تفسیر کو ایڈ کرنا چاہیے، قرآن کریم کے ترجمے کو ایڈ کرنا، اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ اس کو پڑھیں، بہترین طریقہ ہے۔ اور یہ ہماری فیوچر پلاننگ، ایک تو اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ، رشتہ اچھا ہو جائے گا، اور ایک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں گے، اور قرآن کریم کی جب ہم سٹڈی کریں گے تو سیرت کا کیا فائدہ ہے؟ سر یہاں پہ میرا کویشچن ہے، صرف قرآن مجید یا حدیث بھی پڑھیں؟ کیونکہ قرآن کے ساتھ حدیث بھی ضروری ہے۔ حدیث بھی، اگر ہم دیکھیں، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایڈ کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، جب ہم پشیمان، جب ہم مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، نا امید ہو چکے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سامنے آتی ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہم
ना उम्मीद नहीं होती अल्लाह ताला से, होपलेसनेस नहीं होती अल्लाह ताला से। हमारी उम्मीदें अल्लाह के साथ जुड़ जाती हैं, तवक्कुल अल्लाह के ऊपर, यकीन हो जाता है कि हमारे ऊपर एक ज़ात ऐसी है जो हमें कभी नहीं छोड़ेगी। यानी चारों दरवाजे बंद भी हो ना, सारे दरवाजे बंद हो, सारी की सारी कायनात के साथ हमारा काटअप हो जाए, सारे रिश्ते टूट जाएं, लेकिन एक ज़ात ऐसी है जो हमें कभी नहीं छोड़ती, जो अल्लाह ताला के हैं। अल्लाह ताला कभी नहीं छोड़ते, इंसान के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। देखते नहीं इंसान कितने ज़्यादा गुनाहों के अंदर, गलतियों के अंदर चला जाता है और बहुत ज़्यादा गुनाह करता है, लेकिन कभी अल्लाह ने रात का रिज़्क बंद नहीं किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने नाश्ता ना किया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने डिनर ना किया हो। यानी अल्लाह ताला उसको ज़रूर जो है उसकी मेहनत का सिला उसको देते रहते हैं, रिज़्क अता फरमाते रहते हैं, अगरचे कोई इंसान नमाज नहीं पढ़ता। तो हमारी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ ज़रूर ऐड होनी चाहिए कि पहले नंबर पे तफसीर को अच्छे तरीके से पढ़ें, अल्लाह के साथ कॉन्टैक्ट, रिश्ता अच्छा होना चाहिए, और दूसरे नंबर पे सीरत की स्टडी, सीरत का ज़रूर मुताला होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सहाबा इकराम की सीरतें, उनके वाक़यात, उनकी ज़िंदगियाँ, ये हमारी ज़िंदगी के अंदर अगर ऐड हो जाती हैं तो इसके ज़रिए हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा निखार पैदा हो सकता है। उसके बाद है कि हमारी कंपनी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 4 जो है, चौथे नंबर पर जो चीज़ है, गो ऑन अ सोलो ट्रिप इन दिस ईयर। हम अपने साथ कितना वक्त स्पेंड कर रहे हैं, अपने साथ हमें कितना वक्त, कभी कभार ज़िंदगी के अंदर मंथली, वीकली या एक साल के बाद हमें अलग होना चाहिए, चंद दिन अलग गुजारने चाहिए, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन बिल्कुल अलग गुजारने चाहिए कि हम सिर्फ हमारा अपनी ज़ात के साथ कॉन्टैक्ट हो और अल्लाह ताला के साथ कॉन्टैक्ट हो, सिर्फ और सिर्फ हमारा तल्लुक कॉल अल्लाह के साथ मिलाई हो, और हम सोचें, उसके ऊपर तफक्कुर करें कि हम क्या कर रहे हैं और हमें अल्लाह ने कितनी ज़्यादा नेमतें दी हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उन नेमतों का इस्तेमाल कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा, मुझे अल्लाह ने जहानत दी है उसका इस्तेमाल है या नहीं है, मुझे अल्लाह ताला ने याद करने की जहानत दी है, सलाहियत दी है, वो है, मेरे अंदर कोई टैलेंट पाया जाता है, मैं कोई अच्छे तरीके से किसी को गाइड कर सकता हूँ, क्या इन चीज़ों का मैं इस्तेमाल भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। ये अगर हम एक मंथली या एक साल के बाद इसके ऊपर तफक्कुर सोचते हैं और एक कुछ दिन खास कर लेते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का खास कर लेते हैं, भाई इस दिन ना मोबाइल को यूज़ किया जाएगा, ना किसी चीज़ के साथ हमारा कोई किसी किस्म का कांटेक्ट होगा, सिर्फ अल्लाह के साथ कॉल मिली होगी और अल्लाह के साथ कांटेक्ट होगा। और याद रखिएगा, उनमें से सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, हाउ मच टाइम डू आई स्पेंड फॉर माई अल्लाह अलमाइटी, मैं अल्लाह के साथ कितना टाइम स्पेंड करता हूँ। क्या मैं 5 नमाज़ें पढ़ता हूँ? मुसलमान हूँ, एज अ मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमान हूँ, क्या मैं अल्लाह को टाइम दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा? 24 घंटे हैं, 24 घंटे, उनमें से अल्लाह ताला 1 घंटा मांगते हैं, तो क्या मैं अल्लाह को घंटा देता हूँ कि नहीं देता? अल्लाह को टाइम देता हूँ कि नहीं देता? अल्लाह को वक्त दे रहा हूँ कि नहीं? अल्लाह को याद कर रहा हूँ कि नहीं? अल्लाह ने जो जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर आयद की हैं उनको मैं अच्छे तरीके से निभा भी रहा हूँ कि नहीं निभा रहा? ये अल्लाह ने एक बहुत बड़ी इंसान के ऊपर जिम्मेदारी लगाई हुई है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने, अल्लाह ताला फरमाते हैं, पैदा इसलिए किया कि ये मेरी इबादत करें, मुझे याद करें। तो अल्लाह ताला को हमेशा हमें टाइम देना चाहिए। उसके बाद हु एम आई रियली, क्या मैं कौन हूँ, मैं क्या चीज़ हूँ, मैं है कौन हूँ, मेरे अंदर कौन सी सलाहियत पाई जा रही है, मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। व्हाट एम आई रियली स्कॉर्ड ऑफ, मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर डर किस चीज़ का है। जब हम अलग होंगे, जब हम गो ऑन अ सोलो ट्रिप इन दिस ईयर, यानी जब हम अलग होंगे तो इन चीज़ों का हमें सोचना पड़ेगा। ये जो 10-12 चीज़ें मैं बताने लगा हूँ, सबसे पहली चीज़ क्या है, अल्लाह के साथ कॉन्टैक्ट कितना है, रिश्ता कितना है। दूसरी चीज़, मैं है कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और कैसी ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर जो साल बीत गया है या जितने साल मेरी ज़िंदगी के गुजर गए हैं, किसी के 10 साल गुजर गए होंगे, किसी के 20 साल, किसी के 30 साल, किसी के 50, किसी के 100 साल गुजर गए होंगे, कितने साल हमने गुजार दिए। तो क्या मुझे डर किस चीज़ का है मेरी ज़िंदगी के अंदर, मैं किस चीज़ से ज़्यादा डर हूँ। आगे, व्हाट मैटर्स मोस्ट इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा मैटर चीज़ कौन सी है, क्या चीज़ है जो मुझे मोटिवेट कर लेती है, क्या चीज़ है जो मुझे ज़्यादा माइल कर देती है। ये इंसान को पता होना चाहिए अपनी हैबिट्स का, कौन सी चीज़ है मेरे अंदर, यहाँ कौन सी कमी पाई जा रही है मेरे अंदर। आगे, एम आई यूजिंग माई टाइम बेसिकली, क्या मैं अपने टाइम को कहीं फजूल में ज़ाया तो नहीं कर रहा,
کہیں میں گپ شپ کے اندر ہی تو نہیں گزار رہا, کہیں میں اپنا وقت اپنے دوستوں کے ساتھ ہی تو نہیں سارا سپینڈ کر دیتا, کہیں میں اپنا وقت جو ہے گلی چرستوں کے اندر ہی تو نہیں سپینڈ کر دیتا. پورے سال کے اندر میں نے کہاں وقت گزارا ہے اور کہیں میں نے اپنا وقت ضائع تو نہیں کر دیا. یہ انسان کو سوچنا چاہیے. اس کے بعد ایم آئی ٹیکنگ کیئر آف مائی سیلف فزیکلی, کہ میں اپنی ذات کا بھی خیال رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا, اپنا خیال رکھتا ہوں کہ نہیں. دیکھیں یہ میں جو غصہ کرتا ہوں یہ میں اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہوتا ہوں. میں نیگیٹو سوچتا ہوں, اپنے آپ کو غصہ دلاتا ہوں, نیگیٹو سوچتا ہوں, تو یہ میں اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں. میں اپنے آپ کو بھی مجھے تکلیف نہیں دینی چاہیے. فار ایگزامپل ایک شخص نے ہاتھ میں انگارا پکڑا ہوا ہے, انگارا, وہ تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ خود کو ہو رہی ہے. جس نے پکڑا ہوا ہے اسی کو تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ ہم نے غصہ, نیگیٹو سوچنا, حسد, کینہ, بغض دوسروں کے بارے میں, یہ ہم نے ایک انگارا پکڑا ہوا ہے اور اس کی تکلیف ہمیں ہی ہو رہی ہے. تو ہمیں سب سے بڑی, ہم دیکھیں دوسروں کو خوش کر دیں گے لیکن اپنے آپ کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے, ہم اپنے آپ کو ہنسا نہیں سکتے, خوش نہیں کر سکتے. کہتے ہیں نا اسمائل از ویری ویری امپورٹنٹ. آگے کیا ہے کہ ڈونٹ بی سیریس ان لائف بٹ ٹیک لائف سیریس. اپنے آپ کو سیریس نہیں کرنا چاہیے, بندہ کو اپنی زندگی سیریس کرنی چاہیے. ہم اپنے آپ کو سیریس کر, میرا دل نہیں لگ رہا, میں جی ٹھیک نہیں ہوں, مجھے آج اس چیز نے غصہ دلا دیا, اسی کے اندر بندہ سوچتا رہتا ہے. تو یہ ہم اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. سر غصے کو کیسے ہم قابو کر سکتے ہیں؟ غصے کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے؟ سب سے مین چیز تو یہ ہے, ہم حدیث کی طرف آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. بہترین پاورفل آدمی کون ہے؟ ہم کس کو سمجھتے ہیں کہ جو شخص کسی کو بچھاڑ دے, جو شخص کسی کو گالی دے دے, ایک گالی دی ہے 2 دے دے, جو ایک تھپڑ مارا ہے تو اس کو 2 تھپڑ مار دے, ہم اس کو کہتے ہیں بڑا بہادر آدمی ہے بھائی. لیکن بہادر کس کو کہتے ہیں؟ بہادر وہ شخص ہے, فرمایا جس کو غصہ آیا اس نے غصے کو پی لیا, اللہ کے اوپر معاملات کو چھوڑ دے, اپنے آپ کو اللہ کے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر غصہ انسان کھڑا ہے, غصہ آ جاتا ہے تو بیٹھ جائے, اگر بیٹھے غصہ آ جائے تو لیٹ جائے, یعنی پھر یہاں وضو کر لے. یعنی مختلف طریقے آزمائے جا سکتے ہیں, ذرائع آزمائے جا سکتے ہیں, لیکن ہمیں اپنا جتنے بھی معاملات ہیں ان کو اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. ہر معاملے کو اللہ کے اوپر نہیں چھوڑ دینا چاہیے, لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل رشتہ داریاں ہیں, رشتہ داریاں ہمیشہ جھکنے سے چلتی ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا, کبھی بھی ہم رشتہ داریوں کو ایسے نہیں چلا سکتے کہ ہم اپنا ہی سوچتے رہیں اور غصہ کرتے رہیں, رشتہ داری چل جائے. نہیں, ہمیں کیا کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو تھوڑا کلوز, کوئی بات نہیں یار, جان دے, کوئی نہیں, خیر ہے, معاف کرو, کوئی بات نہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. بہترین پاورفل انسان وہ ہے, عظیم ترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے. آج دیکھیں نا, آج سال کا پہلا دن ہے اور کتنے لوگ ایسے ہیں, ہمارے مائیں بہنیں بھائی ایسے ہیں جو سال ہر سال سے اپنی بہن سے ناراض ہیں, اپنے بھائی سے ناراض ہیں. محلے کی دوسری جگہ جا کے اپنے کسی شخص کو, کسی دوست کو پیسے دے دیں گے, راشن دے دیں گے, ہمسائے کو نہیں دیں گے, اپنی سگی بہن کو نہیں دیں گے, سگے بھائی کو نہیں دیں گے. وہ ترستا رہتا ہے اور کہتا رہتا ہے کہ یہ مجھے کب دے گا, کب میں اس سے کچھ چیز حاصل کروں گا. یعنی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ والدین. سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ بھائی بہن. تو ہم دوسرے بھائی بہنوں کو جو دور, جن کا دور تک کا رشتہ بھی نہیں, مسلمان ہیں, مسلمان آپس میں بھائی میں بھی سب سے پہلے اپنوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہم دوسرے محلے کی مسجد میں چلے جائیں گے فنڈ دینے کے لیے, دوسرے محلے کے لوگوں کو دینے چلے جائیں گے, لیکن جو قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ ہماری دعوت ہے, ان کے ساتھ ہماری دشمنی چل رہی ہے, ان کے ساتھ ہمارا حسد چل رہا ہے, بغض ہے. یعنی ان کی بات اگر کوئی پسند نہیں آئی تو کٹ اپ جو ہے کر دیا, رشتہ توڑ دیا ان کے ساتھ. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر رشتے جو توڑ دیتے ہیں. تو سب سے مین چیز یہ ہے, ہمیں غصے کو پینے والا ہونا چاہیے, معاف کرنے والا, درگزر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پہلے نمبر پہ ہم نے جو چیز ایڈ کی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہم جتنے مرضی غصے میں چلے جائیں, جتنا مرضی ہمیں کوئی نقصان دے دے, لیکن ہم نے اس کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچنا. ہمیں ہمیشہ اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ کتنے لوگوں نے نقصان پہنچایا اور کتنے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برے طریقے سے, انہوں نے برا بیہیویئر استعمال کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کیا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے. اس کے بعد ہے ہاؤ مینی ریئل فرینڈز آئی ہیو ٹل ناؤ. کیا میرے ساتھ جو دوست ہیں وہ کتنے صحیح دوست ہیں میرے ساتھ. میں کہیں ایسی بیٹھک تو نہیں بیٹھتا کہ جو
नेगेटिव लोगों की है, कहीं ऐसे लोगों के साथ तो नहीं रहता जो सोचते ही बुरा है, कहीं ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठता जो है ही बेनमाजी हैं, जिनका ताल्लुक ही नहीं अल्लाह के साथ, जिनका रिलेशन ही नहीं अल्लाह के साथ, कहीं मैं भी तो उन जैसा नहीं हो गया। होना तो ये चाहिए ना, एक शख्स के जो फ्रेंड्स हैं वो बेनमाजी हैं तो वो उनके साथ बैठे और उसके फ्रेंड्स उसकी वजह से नमाजी हो जाए, अच्छे रास्ते के ऊपर चल जाए। तो होता क्या है, वो भी उसके साथ हो जाता है। यानी एक दोस्त सिगरेट पी रहा है तो एक मंथ उसके साथ वो ज़िंदगी बसर करता है, तो एक मंथ के बाद वो चेक ज़रूर करता है उसको, लेकिन मुसलमान की उसको खुशबू नहीं पहुँच रही, इसकी नमाज की उसको खुशबू नहीं पहुँच, लेकिन उसके इस तक पहुँच गई। क्यों? क्योंकि इसने अपने आप को चेंज ही नहीं किया, अपने आप को बदला ही नहीं है। और बेहतर दोस्त बनाने के लिए हमें दोस्तों के अंदर क्या चीज़ देखनी चाहिए? दोस्तों के अंदर सबसे मेन चीज़ ये है, दोस्त किसे कहते हैं? दोस्त वो होते हैं जो आपके साथ ज़िंदगी बसर करते हैं और खुशी गमी के अंदर शरीक होते हैं, और वो नेगेटिव नहीं सोचते, उनको आपकी तरफ से अच्छा सलूक मिले या ना मिले वो आपके साथ रहना पसंद करते हैं। दोस्त वो होते हैं जो आपकी गलतियों को नोट करके आपकी इस्लाह करते हैं, ना कि आपकी गलतियों को फैला देते हैं, ना कि दूसरों तक आपकी गलतियां पहुंचा देते हैं। होता क्या है हमारे यहाँ कि एक दोस्त को एक ही गलती का पता चल गया तो वो क्या करता है, वो दूसरों तक पहुंचा देता है, कभी किसी को मुआशरे के अंदर उसकी दो मचा दी। इसको दोस्त नहीं कहते। दोस्त वो है जो आपकी गलती को देखता है, फिर उसको आपके यहाँ आता है, आपकी इस्लाह करता है, मशवरा करता है, आपको बताता है भाई ये आपके अंदर गलती पाई जा रही है, इससे छुटकारा हासिल करें, इससे दूर हों। यही तो दोस्ती तो मेन चीज़ है, यही है कि जो अच्छे रास्ते के ऊपर लेकर आता है, बुरी आदतें उससे ख़त्म कर देता है। तो हमें दोस्त अच्छे बनाने चाहिए, कंपनी अच्छी होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसे लोगों के साथ बैठता हूँ जो बिल्कुल कंपनी अच्छी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स 5 नमाजियों के पास बैठता है ना, उसके दोस्त नमाजी हैं, वो बेनमाजी है, तो एक दिन वो भी नमाजी बन जाएगा। लेकिन अगर उसके 5 दोस्त बेनमाजी, सिगरेट पीने वाले, शराब नोशी करने वाले हैं, एक दिन उनके ऊपर भी उसका असर पहुंच जाएगा। वहाँ तक उसका भी, क्योंकि कंपनी इस इंसान के ऊपर मैटर करती है। कंपनी जो है वो बहुत असरअंदाज होती है इंसान को देख के खरबूजा रंग करता है, ऐसे ही है। तो यानी खरबूजे को देख के खरबूजे में रंग पकड़, तो यही है कि इंसान को अगर उसकी कंपनी अच्छी है तो वो किस्मत वाला इंसान है। अच्छे लोगों की निशानी ये है कि वो हमेशा उन लोगों के पास बैठते हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, और बुरी जो गलतियाँ उसके अंदर जो पाई जा रही हैं उसकी निशानदाही भी करते हैं। उसके बाद है व्हाट स्ट्रेस्ड मी आउट, क्या मुझे परेशानी क्या है इस वक्त, यानी मेरे अंदर कौन सी चीज़ ऐसी पाई जा रही है जो मुझे परेशान करती है। गुस्सा इंसान को परेशान कर देता है, बुरी चीज़ें याद रखिएगा, एक शख्स जिसके दिल के अंदर थोड़ा बहुत भी ईमान है, वो गुनाह करता है ना, गलती करता है, तो उसके ऊपर वो गुनाह जो है ना उसके दिल में खटकता रहता है, उसे कहता रहता है, झंझोड़ता रहता है, कुछ ना कुछ झंझोड़ता रहता है। ये हर इंसान का इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी हो सकता है। जब वो गुनाह करता है ना, उसको अगर ईमान है उसके अंदर, वो झंझोड़ता है, भाई तुमने गलत काम किया है, गुनाह किया है तुमने, झंझोड़ है। अगर तो उसको ये चीज़ परेशान करती है तो ये लकी इंसान है, ये बेहतरीन इंसान है। तो याद रखिएगा फ्यूचर प्लानिंग के अंदर हमें कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें परेशान कर रही हैं, उनसे हमें छुटकारा हासिल करना चाहिए, दूर जाना चाहिए। गुनाह अगर परेशान करते हैं तो गुनाहों से दूर होना चाहिए। अगर ईमान है तो गुनाह परेशान करते हैं इंसान को, तो हमेशा इंसान को गुनाहों से दूर होना चाहिए। उसके बाद है व्हाट टाइप टू पर्सन डू आई वांट टू बी, किस तरह का इंसान मैं बनना चाहता हूँ। जब इंसान लग बैठ के ये सोचेंगे ना कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, कैसा इंसान बनना चाहता हूँ, मैं बुरा इंसान बन रहा हूँ या अच्छा इंसान बन रहा हूँ, मैंने अब कौन सा इंसान बनना है। अब चूँकि न्यू ईयर है तो मैंने इस साल कौन सा इंसान बन के दिखाना है, फिर उसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए, उसके लिए फिर सफ़र जारी होना चाहिए, फिर उसके लिए हमें ट्रैवलिंग करनी चाहिए, जारी होना चाहिए, ज़रूर उसकी तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए। यानी मैं किस तरह का अभी इंसान बनना चाहता हूँ। उसके बाद है व्हाट डू आई नीड टू चेंज माई सेल्फ, अब मुझे इस ईयर के अंदर कौन सी चीज़ बदलने की ज़रूरत है, यानी मैं कौन सी चीज़ को चेंज करूं तो मैं अपने आप को बेहतर बना सकता हूं। बुरी आदतें हैं, फॉर एग्जांपल एक शख्स सिगरेट पीता है, एक शख्स बेनमाजी है, आदत ख़त्म कर दे, यानी अब उसको ये चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है। यानी इसको वो अल्लाह के साथ अगर कॉन्टैक्ट रिश्ता जोड़ना चाहता है तो उसको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी, उसको ऐसी बैठक छोड़नी पड़ेगी जो नेगेटिव है, जो बुरे लोग हैं,
याद रखिएगा, हमेशा अच्छे लोगों के अंदर बैठना चाहिए, हमेशा अच्छे लोगों की मजलिसें इख्तियार करनी चाहिए। इंसान अच्छा बनता है, आदतें डिवेल्प होती हैं उसके अंदर, वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें अचीव करता है। तो ये हमें इस तरह करना चाहिए कि हमें हमेशा अपने अंदर बदलने की सलाहियत रखनी चाहिए। इंसान को खाली रहना चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं, इंसान को खाली रहना। हम हर जगह बड़े बड़े हैं, हम कहते हैं नहीं मुझसे ज़्यादा किसी को आता ही नहीं है, मुझसे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, मुझसे ज़्यादा किसी के पास डिग्री नहीं है, मुझसे ज़्यादा कोई किसी को गाइड नहीं सही तरीके से कर सकता। नहीं, ये इंसान की कमज़ोरी है। इंसान को खाली रहना चाहिए। इस्लाह की इंसान को पूरी ज़िंदगी के अंदर हर दौर में हर लम्हा ज़रूरत पड़ती रहती है, ज़रूरत पड़ती है उसको कि इस्लाह करनी है, मैंने इस्लाह करनी है। उसके बाद लास्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इफ़ यू हैव 1 year लेफ्ट टू लिव व्हाट वुड यू डू। अगर 1 साल मुझे और मिल जाए, यानी ये जो साल मुझे और मिल जाए, तो मैंने इस साल के अंदर क्या अचीव करना है, क्या हासिल करना है, अच्छी चीज़ों को हासिल करना है मैंने या बुरी चीज़ों को हासिल। यानी अगर ये मेरी ज़िंदगी का ये आखिरी साल हो, इंसान समझ लेना ये मेरी ज़िंदगी का क्या है, आखिरी साल है, इसके बाद कोई मुझे साल नहीं मिलने वाला, तो मैंने इस साल के अंदर क्या करना, क्या करूँगा। ज़ाहिर बात है, जब हमारे जो बूढ़े हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो समझते हैं अब मेरा वक्त आने वाला, तो क्या करते हैं, मुसल्ले के ऊपर रहते हैं, अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। यानी वो हमेशा अल्लाह के साथ अपना कांटेक्ट जोड़ लेते हैं। तो हमें भी इंसान को समझना है भाई ये मेरा आखिरी साल है, आखिरी दिन गुजर रहा है, आखिरी मंथ है, मैंने इसके अंदर क्या करना है, मैंने क्या करूँगा इसके अंदर, कैसी ज़िंदगी अब मैंने बसर करनी है। क्या मेरा अगर ये आखिरी साल हो तो मैं ऐसे अमाल कर बैठूं जो बूढ़े हैं, तो क्या अल्लाह के यहाँ मैं पेश हो सकता हूँ, अल्लाह को जवाब दे सकता हूँ। ये इंसान को सोचना चाहिए। तो इंसान को ये प्लानिंग करनी चाहिए कि मैंने अब जो साल अगर ये जो बच गया है मेरी ज़िंदगी के अंदर, मुझे न्यू साल एक मिल गया है, इस साल में मैंने अब क्या करना है। उसके बाद लास्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बेहतरीन जो चीज़ है, दिस यू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर पेरेंट्स। हमने अपने वालिदैन के साथ वक्त स्पेंड करना है, वक्त फैमिली के साथ, वालिदैन के साथ वक्त गुजारना है। देखें, हम दुनिया के हर मामले के लिए वक्त निकाल रहे हैं, फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल रहे। वालिदैन के लिए, वो वालिदैन जो इंसान को हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, फिर वो जो बोलना सिखा रहे होते हैं उसको, हम उनके साथ वक्त स्पेंड करते हैं। वालिदैन से मुझे एक चीज़ याद आई, वालिदैन के साथ सलूक कैसा होना चाहिए। हाँ, वालिदैन के साथ सलूक कैसा होना, वालिदैन के साथ सलूक जो है, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसान। वालिदैन के साथ उसने सलूक करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रिज़ल रब्बी फ़ी रिज़ल वालिदी व सख़तु रब्बी फ़ी सख़तिल वालिद। अगर वालिदैन खुश हैं तो अल्लाह भी खुश है, अगर वालिदैन नाराज़ हैं तो समझ लें अल्लाह भी नाराज़। यानी वालिदैन के साथ हमें अच्छा सलूक करना चाहिए। भाई देखें, आज देखें ना उस औलाद को, वालिदैन के साथ वो औलाद कैसा सलूक करती है, कैसा वक्त गुजार। वालिदैन के लिए वक्त ही नहीं होता इंसान के पास। और क्या करते हैं हम औलाद जो है, औलाद इसको जब बोलना आ जाता है ना, थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, इल्म आ जाता है, थोड़ी बहुत बात करना सीख जाते हैं, तो फिर ये वालिदैन के आगे चौं चौं शौं शौं लगाया होता है, इन्होंने बातें करना शुरू कर देते हैं। वालिदैन कौन सी अजीम तरीन नेमत है। देखें, वालिदैन जब बच्चा छोटा सा होता है तो वालिद सारी ज़िंदगी बाहर गुजार देता है, बाहर गुजार देता है। किसके लिए? अपनी औलाद को अच्छी चीज़ें देने के लिए। इसको भाई, इसको मैं अच्छी से अच्छी चीज़ें ला के दूँ, इसको बेहतरीन चीज़ें ला के दूँ। जो मुझे तकलीफ़ पहुँची है मेरे बेटे को, बेटी को तकलीफ़ नहीं पहुँचनी चाहिए। यानी फिर उसके बाद क्या होता है, वालिद उसको हाथ से पकड़ के चलना सिखा रहे होते हैं। फिर ये बोल नहीं सकता, इसको बोलना सिखा देते हैं वो। लेकिन जब इसको बोलना आ जाता है तो फिर ये वालिदैन के सामने जो है बातें करना शुरू हो जाता है, वालिदैन का तकद्दुस भूल जाता है, उनकी तमीज़ भूल जाता है, फिर ये उनका एहतराम भूल जाता है। वो वालिदैन जो इसको हर तरह की नेमत, यानी इसको अमेरिका भेज रही हैं, खुद पाकिस्तान के अंदर है, और इसको बाहर कंट्रीज़ के अंदर भेज रही हैं। इसको MA की डिग्री लेके दे रहे हैं, लेकिन खुद नहीं पढ़े हुए। क्यों? मेरे बच्चे का फ्यूचर बन जाए, मेरी बच्ची का फ्यूचर बन जाए, मेरी बेटी का बेटे का फ्यूचर बन जाए, लेकिन खुद कुछ नहीं है। लेकिन अपनी औलाद को क्या कुछ बना देते हैं इंसान, वालिदैन क्या कुछ बना देते हैं। अगर वालिदैन अपनी औलाद के साथ नाइंसाफ़ी करें तो उनके साथ फिर कैसा सलूक होना चाहिए। वालिदैन पहली बात तो ये है, अपनी औलाद के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते। उसके बाद अगर वालिदैन नाइंसाफ़ी कर भी ले
क्या नाइंसाफ़ी किस चीज़ में करेंगे? माल के अंदर हो जाएगी, यही होगा। तो माल किसका है? वालिदैन का। हम किसके हैं? वालिदैन के। हमें वालिदैन के साथ हमेशा उसने सुनो, अगरचे वालिदैन गैर मुस्लिम क्यों ना हो। जनाब अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं और फरमाती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वालिदा मोहतरमा आई है मेरे पास, है मुशरिक है, मुसलमान नहीं है, तो कैसा सलूक करना चाहिए? मैं उसके साथ अच्छे तरीके से पेश है, उसने सलूक करो उसके साथ। यानी वालिदैन अगरचे गैर मुस्लिम भी हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, तो मुसलमान है अगर वालिदैन तो फिर तो उनके साथ बिलोला जो है क्या करना चाहिए? अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अगर वालिदैन अल्लाह की नाफरमानी करने का हुक्म दे तो फिर उसकी सूरत में क्या करें? वालिदैन अगर अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म देते हैं तो फिर वालिदैन की बात को नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। देखें सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला वो सहाबी हैं, बड़े अजीम तरीन सहाबी हैं, मुसलमान हुए तो वालिदा ने कहा इस्लाम को छोड़ दो, फिर कहा कि मैं धूप में मर जाऊंगी कि अगर तुमने इस्लाम को ना छोड़ा। यहाँ जनाब साद रज़ी अल्लाह तआला हुस्न सलूक करते रहे हैं, लेकिन इस्लामी बात, दीन की बात, अपनी वालिदा की बात को ज़्यादा तरजीह नहीं दी, अल्लाह और उसके रसूल को तरजीह दी है। कहा माँ जी मैं पहली बात तो ये कहता हूँ आप ऐसा ना करें, मुझे इस्लाम ने हुस्न सलूक का हुक्म दिया है, हाँ आपके साथ अच्छा बर्ताव करो, लेकिन अगर आप ऐसा करती हैं तो 100 माएँ भी हों कोई टेंशन नहीं है, कोई मुझे टेंशन नहीं है इस चीज़ की कि मैं अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आपकी बात को मान लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। यानी वालिदैन फॉर एग्जाम्पल वालिदैन कहते हैं नमाज नहीं पढ़नी बेटा, तो वालिदैन की यहाँ बात नहीं मानेंगे हम, बात कौन सी मानेंगे? जो शरीयत के मुताबिक। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक हर तरह का मामला करेंगे, लेकिन अल्लाह के मुकाबले में वालिदैन